آپ کے دلوں کی دھڑکن سنا ہے، وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، تو جو بولے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو جو مسکرائے تو جام رقص کرتے ہیں، میرے مراد جناب عمر نذیر کشمیری۔ عمر نذیر کشمیری صاحب زندہ آباد۔ زندہ آباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیجا بیجا بھائی جان، بیجا بیجا۔ پنڈال کے اندر میں بھائی جی پیچھے ہونا تھا کوڑ بس گر لیا صحیح بیجو سنا بینے سکا لجو اسٹیج بھی لجو بہنیں بیٹیاں سے ویڈیو بنی بھائی جی جو کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ آج 10 محرم الحرم ہے، اور یہاں کے پچھلے 20 دنوں سے اس ریاست کے اندر، ریاست بھر میں بالخصوص راولاکوٹ پونچھ کے اندر جو بربریت کی گئی، ریاستی دہشت گردی کی گئی، پچھلے 78 سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود آپ عوام کا جوش، جذبہ، جرت، بہادری اور ہماری ماؤں بہنوں کا جذبہ قابل ماشاءاللہ جی کسی تعداد بندے نے شروع ہی کیا قابل فخر ہے کہ ایک طرف آپ کو پاکستانی میڈیا کے اندر دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، یہاں کی نقدی عوام کو جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو جو ہے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ شہر کے اندر کرفیو ہے، پورے کشمیر کے اندر کرفیو ہے، پاکستان کی فورسز یہاں پہ اسٹیٹ فائر کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہاں کی عوام نے جس جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا مقدمہ پرامن طور پر لڑا، جس کے اثرات نہ صرف جموں کشمیر کے اندر بلکہ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی غیرت مند کشمیری موجود تھا، جو بھی کوئی انسان دوست موجود تھا، جو انسان کی آزادیوں پہ، اظہار رائے پہ، پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتا تھا، وہ آپ کے حق میں بول پڑا، باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا بند ہے، باوجود اس کے کہ جبر ہے، موبائل سروس بند ہے، اس کے باوجود حکمران طبقہ آپ کی آوازوں کو دبانے میں، آپ کی آوازوں کو آگے بڑھانے میں پوری طرح ناکام رہا۔ وہ 2 دن قبل آپ نے دیکھا، میں شکریہ ادا کروں گا اس اسٹیج سے جناب محترم فضل الرحمان صاحب کا، کہ جنہوں نے اس سے قبل بھی اسمبلی کے اندر سپیچ کی اور ہماری حمایت میں گفتگو کی، ثالثی کی پیشکش کی، اور 2 دن قبل آپ نے دیکھا، یقیناً دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ جو جس آواز کو دبایا جا رہا تھا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا اور آپ سارے لوگوں کو جتھا کہا جا رہا تھا، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اس قدرت کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے فورم
पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर आपकी हक में आवाजें गूंजी। और जहां पे आवाजें गूंजी वहां के एक साहब खड़े होके ये कहते हैं कि रावला कोट कश्मीर का हिस्सा नहीं है। मैं शर्म आनी चाहिए। मैं उस तनाज़ुर में जो कहना चाहता हूं कि ये जो असेंबली के अंदर 53 का टोला है, इनको अपनी पोजीशन वाज़ा करनी होगी कि वो ख्वाजा आसफ के उस बयान के साथ खड़े हैं। क्या वो ख्वाजा आसफ के उस बयान को आन करते हैं या किसान करते हैं? मतलब मैं उनके लिए कह रहा हूं, उन्हें बताना होगा जो अवाम के नुमाइंदे के तवतार बनते हैं, अवाम के वोटों से असेंबली के अंदर जाते हैं, और पाकिस्तान का एक वजीर असेंबली में खड़े होकर यह कहता है कि रावला कोट का कुछ एक मखसूस इलाका है, उसके चंद लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं, और साथ ये भी कहता है कि रावला कोट और मीरपुर वाले कश्मीरी नहीं है। तो बताना पड़ेगा इनको हम कौन हैं। पता लग गया हम कौन हैं कश्मीरी। तो ये इस बात का जवाब हमारे हुक्मरानों को भी देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ये बात नजरियाती कश्मकश की नहीं है। जिस जुर्रतमंदाना अंदाज में वहां पे गुफ्तगू की, हम उन सारों को उनका शुक्रिया अदा करते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, कश्मीरी अवाम की तरफ से, कि चलो किसी को तो तौफीक हुई कि वो हक की बात करे, अमन की बात करे, मुज़ाकरात की बात करे। तो इसी तरह यहां पे बहुत सारे वफूद हमारे पास आए, पाकिस्तान से भी बहुत सारे अहबाब हमारे पास आए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को कि जो यहां पे आए, उनके साथ नारवा सलूक किया गया यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बावजूद वो रात 1:30-2 बजे हमें ढूंढ के हमसे मिले, और जिस जुर्रतमंदी के साथ उन्होंने वीडियो पैगाम दिया, ना सिर्फ वीडियो पैगाम दिया बल्कि हमारे मौक़िफ़ की तायद भी की, और साथ जो है पाकिस्तान में जाके वहां पे मीडिया टॉक किया और भरपूर अंदाज में हमारे मुतालबात और यहाँ पे हम पे ढाई जाने वाला जुल्म, जबर, जारियत, उसके खिलाफ बात किया। मुश्ताक अहमद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह अगर हम साबित कदमी के साथ इसी तरह इन्होंने हमारी आवाजों को दबाया, इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं थी, हमारा इंटरनेट बंद कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कल बीबीसी की तरफ से जो तफसीली तौर पर रिपोर्ट पेश की गई, मैं उस बीबीसी का नुमाइंदा जो भी है, मुझे नहीं पता वो कौन है, जिसने भी हकायक पे मबनी उस रिपोर्ट को नशर किया, आपके धरने को, आपकी इस गैदरिंग को, आपके सारे क्राउड को, यहाँ के खवातीन और बच्चों के उस मजमे को रिपोर्ट किया और यकसर पाकिस्तानी मीडिया के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। वो चीखें निकल गई, कहा कि जी बीबीसी का नुमाइंदा झूठ बोल रहा है। जो एक इंटरनेशनल मीडिया है उसे चुटलाने की कोशिश की गई। तो इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अगर हमारी साबित कदमी रही, हम आगे नहीं बढ़े, इसमें भी हिकमत थी, हम रुक के वक्ती तौर पे, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारी लॉन्ग मार्च की काल ऑफ नहीं हुई है। कोई ये भूले नहीं कि लॉन्ग मार्च की काल
अभी तक मौजूद है। वक्ती तौर पे हमने चीजों को मुखर किया और ये अज़म किया कि हम शाही पे एक मखसूस वक्त तक, बहुत लंबे अरसे तक नहीं, एक मखसूस वक्त तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, अपने धरने जारी रखेंगे। 2 दिन कबल आपने भी सुना होगा यकीनन कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी बड़ी धमकी हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और झूठ बोला गया। मैं कोई जो इंसानी अक़दार होती हैं, कोई इखलाकियात होती हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी आईजी तो हमारे साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी 20 बार हमारे साथ बैठा। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ऐसी इंसानियत पे, ऐसे मजहब पे, ऐसी शख्सियत पे, और इसी के कोई अपने मफादात के लिए झूठ की इस सत्तू तक भी जा सकता है। मैंने बराह रास्त सुना, पहले मुझे साथियों ने बताया कि उसने ये कहा वो कहा, मैंने यकीन नहीं किया कि यार इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ है हमारा, लेकिन इंसान इस हद तक भी जा सकता है कि सरेआम सरे बाजार प्रेस मीडिया के सामने बैठ के झूठ बोले। कहा गया कि जनाब हमने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे कर दिए थे। पहले मुतालबात बिजली आटे तक थे, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो फिर जो है उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब कराची एग्रीमेंट खत्म किया जाए, एक्ट 74 खत्म किया जाए। मैं शर्म आनी चाहिए ऐसे लैंड ऑफिसर को कि जो सरेआम बैठ के ये झूठ बोलता है। हमारे कोर कमेटी के मेंबरान, हम सारे मेंबरान, हमारी इंप्लीमेंटेशन कमेटी, वो सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, हम उस पे अपनी गुफ्तगू करते रहे। किसी भी मरहले पे एक्ट 74 और मायदा कराची को ज़ेरे बहस नहीं लाया गया और मीडिया पे बैठ के झूठ बोला गया हमारे खिलाफ एक बयानिया बनाने के लिए। और आईजी साहब धमकियां देते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आईजी साहब, हमने पहले भी कहा था कि ये मॉडल टाउन लाहौर नहीं है, बेशक ये बेशक टी चौक नहीं है, देख रहा हूँ पाकिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। कहा गया झूठ झूठ कि जनाब पता नहीं सीएमएच के ऊपर हमला किया गया। जब एक शख्स इस बात का इतराफ़ जुर्म करता है वीडियो पैगाम के जरिए कि सीएमएच के अंदर जो कुछ हुआ वो सहूलतकारों की तरफ से करवाया गया, बे लोगों की तरफ से करवाया गया, फिर आप इल्जाम हम पे थोपते हैं। हम वक्ती तौर पे आपके इस बयानिए और इल्जाम को वक्ती तौर पे मान के मैं ये बात कहूंगा, अगर आप सच्चे थे, आपके अंदर ताकत थी, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दहशतगर्द थी, हमारे साथियों के हाथों में वेपन था, तो फिर आपने इंटरनेट क्यों बंद किया? इंटरनेट क्यों बंद किया? आज के इस दौर में कोई जुलूस, कोई मीटिंग, कोई जलसा, और बिलखुसूस जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो, जब इतना बड़ा क्राउड हो, प्रोटेस्ट हो, कोई दुनिया की ताकत सोशल मीडिया के दौर में हकाइक को छुपा नहीं सकती। बेशक अगर हमारे हाथ में वेपन थे, हम दहशतगर्द थे, चीजें लाइव चलती हैं, तो फिर आपने मीडिया को उसको क्यों बंद किया? तो सारी दुनिया देखती ना। आईजी सहूलतकार है सीएमएच के अंदर और ये भी देखा जाता कि बर्मंग के मकाम पे आपने 5 जून को क्या किया, और फिर बाद में 5, 6, 7, 8 और फिर 10 तारीख को, 11, 12, 14, 15 तारीख को आपने क्या किरदार अदा किया? क्यों बंद किया आपने इंटरनेट? सारी दुनिया देखती कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दहशतगर्दी कर रही है, आपने क्यों छुपाया चीजों को? इसका मतलब है आप ब्लैकआउट करके
यीशु को अंधेरे में रख के आप दुनिया को गुमराह करने की कोशिश हो। पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को और बैन अल-अक़वामी दुनिया को गुमराह करने के लिए आपने ये सारा खेल खेला। अल्हम्दुलिल्लाह आप नाकाम रहे, नाकाम होंगे, इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। कुछ जरूरी बातें आज मैं करना जरूरी समझूंगा। एक तो ये खुराक के हवाले से कि जबरदस्ती गाड़ियां रोकी जा रही, अद्वियात की गाड़ियां रोकी जा रही, और एक वाकया भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक नौजवान जिसने अपना ऑडियो पैगाम मेरे लिए भेजा और साथ ये भी कहा कि यह अमानत है, उस तक पहुंचाया जाए। किसी मेडिकल स्टोर से, और उसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत सारी चीजों का इल्म हुआ। वक्ती तौर पे तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उसके जरिए बहुत सारी चीजों से पर्दा उठा। ये 2 दिन कबल की बात है, जब मैं यहाँ पे स्टेज पे आया तो मुझे दिखाया गया, बताया गया, उसकी आवाज सुनाई गई। यकीनन वो शायद यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन जिस साहब ने मुझ तक पहुंचाया वो मौजूद होंगे कि एक मेडिकल स्टोर से शुरकाए धरना के लिए, वो मेडिकल से वाबस्ता है वो नौजवान, वहां से अद्वियात लेके अपने मोटरसाइकिल बाइक पे आ रहा था। टूरिज्म होटल के सामने उसे रोका गया कि ये, क्योंकि अद्वियात की तादाद ज्यादा थी, क्वांटिटी ज्यादा थी, कि कहां पे ले जा रहे हो। उसने कहा कि मैं किसी दूसरे मेडिकल स्टोर पे ले जा रहा हूं। उसे कहा बिल दिखाओ, उसके पास बिल मौजूद नहीं था वो इस धरने में ले आ रहा था अद्वियात वहां से खरीद के। तो फिर उसे कहा गया कि अपना फोन दिखाओ, और बदकिस्मती से, मैं बदकिस्मती कहूं या खुशकिस्मती, कि उस बेचारे का जब फोन खोला गया तो उसके फोन से मेरी तस्वीर सामने आई। जॉइंट एक्शन कमेटी के पंडालों की, यहाँ के हमारे प्रोग्राम की तस्वीर उसके अंदर, उसके फोन के अंदर मौजूद थी। फिर उसे गालियां दी गई, उसे थाना ले जाया गया, और थाने में जाना उसका, जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए जो बगैरत सच्चो बगैरत बना, उसको थाने में ले जाके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और खुशकिस्मती के साथ हमारे पहले से वहां पे जो कैदी मौजूद हैं उनके साथ रखा गया, और बाद में को 8-10 घंटे के बाद उसको छोड़ा गया। तो जो वो अपना अहवाल बयान कर रहा है थाने का, कि रोजाना की बुनियाद पे गिरफ्तारियों का अमल जारी है, वो तादाद बताने से कासर है। सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 300 या 400 लोग उस थाने के अंदर, उस कमरों के अंदर उन्हें छोड़ के वहां पे बैठाया गया है, और बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। तो मैं जो दो डीएसपी साहिबान हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि दोनों लोगों ने, डीएसपी अकमल शरीफ, डीएसपी तारक और पुलिस का अमला, जो बात सच्ची है वही कहेंगे। अब उन पर रेंजर छतर नहीं कर रहे। कोई एफसीपीसी अब शुरू दिनों में जब पकड़े गए हमारे साथी वो, तो एफसीपीसी ने उन पर तशद्दुद किया, लेकिन जो सच्ची बात है वही कहेंगे। अब जो तशद्दुद हो रहा है, यहाँ के बैठा हुआ कमिश्नर, यहाँ पे बैठा हुआ डीआईजी, यहाँ पे बैठा हुआ डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी, इनकी इमाम पे रोजाना की बुनियाद पे हमारे उन कैदियों पे तशद्दुद किया जाता है। और जो कोई खाना ले जाता है उन तक खाना नहीं पहुंचाया जाता, कोई पानी ले जाता है। उस नौजवान के जरिए पता लगा कि 3 दिन तक वो जो उन्होंने जल्दी में उन कैदियों ने जो पैगाम भेजा कि हमें भूखा रखा जा रहा है, मैं पूछूंगा उन पाकिस्तान के उन मुक़्तदर कुव्वतों से, वो जो मीडिया में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको लानत भेजे, लानत, इंसानियत के दावेदार बनते हैं, कि ये कहां की इंसानियत है कि आप कैदियों के साथ ये तो सलूक कर रहे हैं। मैं कमिश्नर को, डीआईजी को, एसएसपी और
डिप्टी कमिश्नर को जो जिम्मेदारान है, नसरबाज मैं इन चारों से ये कहूंगा, उन्हें मुतनबे करूंगा कि आज आप FCPC रेंजर अपने इन कमाश्तों को, इनको खुश करने के लिए हमारी आवाम पे जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं। तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि आप, मैं यहां खड़ा होकर समझदारी से ये बात कह रहा हूं कि आपको एक एक जुल्म का साथ देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उन्हें देने पे हैं। हम नहीं देखेंगे कि जालिम का तल्लक किस खित्ते से है। और ये भी बताया गया, हमें कोई सच कहने में कोई महसूस नहीं करते हैं कि जब 3 दिन तक उनको खाना नहीं दिया गया, देखिए जो बात सच्ची है हम कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे। तो 3 दिन के बाद रेंजर वालों ने, जो थाने के अंदर FCPC के एहलकार ने, उन्होंने अपने खाने में से उनको खाना खिलाया। जो को अच्छा काम करेगा सरे बाजार कहेंगे, इंशाअल्लाह। जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ सरे बाजार बात करें। तो इसी तरह मैं आपको जो तनख्वाह मिलती है, यही वो आवाम है जिसकी खून पसीने की कमाई से आपके घरों के चूल्हे जलते हैं। आप आवाम के खादम हैं, आपकी ज़ेरे सरपरस्ती हमारी दुकानों को लूटा जा रहा है। और आज फिर पिछले 3 दिनों में आपने यहां पे पेट्रोल पंप से 2, एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के सामने और एक बल्दियाटा में आपने फिर वहां पे हमला किया। और वहां से न सिर्फ नकदी रकम ले गए, वहां की लोकल पुलिस साथ थी और FCPC के वो सिपाही भी साथ थे। ये सारा कुछ इस कमिश्नर और DIG की सरपरस्ती में हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर की सरपरस्ती में हो रहा है। तो मैं उन्हें गुजारिश नहीं करूंगा, मुतनब्बे करूंगा कि जुल्म की जो काली स्याह रात है उसे एक दिन खत्म होना है और हक गालिब आएगा, हमारा ईमान है इंशाअल्लाह। जिस तरह करबला के अंदर आज ही के दिन 9-10 मुहर्रम को कि आज 1400 साल गुजर चुके, कई सदियां गुजर चुकी, हम बड़े फख्र के साथ इमाम हुसैन और उनके साथियों की, उनकी शहादत को, उनकी जुर्रत को, उनकी इस्तकामत को बयान करते हैं, यजीदियत के जुल्म को बयान करते हैं। तो वक्ती तौर पे यजीद ने, शिमर ने, इब्ने ज़ियाद ने करबला के मकाम पे फतह के झंडे गाड़े थे। इमाम हुसैन के उस चेहरे मुबारक को नेज़े पे ढाल के उसकी बेहरुमती की थी। लेकिन जो हमेशा की कामयाबी थी वो इमाम हुसैन और उनके साथियों के नाम की थी। आज यजीद की कब्र का नहीं पता, शिमर की कब्र का नहीं पता, लेकिन इमाम हुसैन के रोजे पे, शुहदाए करबला के रोजे पे, और इसी के साथ वो जो मर्द मुजाहिद था, जो यजीद के काफिले से, जो मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि या शिमर का किरदार अदा करें या हुर का किरदार अदा करें। आज हुर के रोजे के भी लाखों इंसान जाके उसके रोजे पे हाजिरी देते हैं। ये एजाज हुर को मिला, वो शुहदाए करबला को मिला। तो जो आपकी सरपरस्ती में इसका जिम्मेदार कोई FCPC नहीं है, कोई कर्नल नहीं है। इस डिवीजन के अंदर और बिलखुसूस इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी लूट मार होगी, जो भी दहशतगर्दी होगी और जो भी हमारे कैदियों के साथ नारवा सलूक किया जाएगा, गैर इंसानी सलूक किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, जबर किया जाएगा, ये आपको इसका साथ देना पड़ेगा। एक एक चीज का साथ इंशाअल्लाह। हम मुझे यकीन है, हो सकता है कि कोर कमेटी के मेंबरान हम सारे शहीद हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन है
کہ کمشنر پونچھ ڈویژن DIG پونچھ ڈویژن ڈپٹی کمشنر SSP اور یہ جو DSP صاحبان ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں، آپ یہاں پہ انہی تھنوں کے اندر منشیات کو فروغ دے رہے ہیں، آپ ان تھنوں کے اندر رشوت اور کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ آپ کے دفاتر کے اندر میں پوچھنا چاہوں گا کمشنر صاحب سے کہ آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ کمشنر سے لے کے ایک PN تک، پٹواری تک، آپ کے جو زیر سایہ ہیں روزانہ کی بنیاد پہ عوام سے رشوت دیتے ہیں اور آپ آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اور آج عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہیں اور آپ ان کو دہشت گرد قرار دے کے تھانوں کے اندر، جیلوں کے اندر ان پہ انسانیت سے ذہنی ظلم متبر شدت کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں کہیں پہ ہماری آواز انشاءاللہ، مجھے یقین کہ ہمارا رب، ہمارا رابطہ ختم ہے اپنے قیدی بھائیوں سے، لیکن ہمارا رب ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ جو دھرنے میں عوام بیٹھی ہے یہ آپ کے ساتھ پوری جرات کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ اکیلے نہیں ہیں، جو کھیلوں کے اندر ہیں ایک ایک بندے کا حساب لیں گے، ایک ایک فرد کا حساب لیں گے اور ایک ایک بھائی کا حساب لیں گے جو آپ ہمارے تاجروں کا، ہمارے املاک کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ظلم جبر صرف یہاں پہ نہیں ہے، کوٹلی کے اندر یہ آخری حدوں پہ جا چکے ہیں۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں جب کوٹلی کے اندر ان کے ناکے توڑ کے پوری قوت کے ساتھ شہید چوک اور آبشار چوک کوٹلی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ناروا سلوک کیا جاتا ہے، موبائل چھین لیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، اور پھر گھروں میں جا کے جو لوگ یہاں پہ کوٹلی سے یہاں پہ آئے ان کے گھروں میں جا کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ آپ کس منہ سے کہیں گے، کس منہ سے آپ کہیں گے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ظلم ستم کر رہا ہے؟ کس منہ سے آپ یہ کہیں گے کہ اسرائیل ظلم و جبر کر رہا ہے؟ آپ نے تو وہ ساری حدیں کراس کر لی۔ تو اسی لیے میں کہوں گا، اسی طرح ڈوڈیال کے اندر، اسلام گڑھ، چکسوائی کے اندر خواتین نے مظاہرے کیے بے شک بے شک، اور دوسرے تیسرے دن جا کے گھروں میں چھاپے مارے گئے۔ وہاں کے نوجوان جنہوں نے مظاہروں کو مینیج کیا ان کے گھروں میں چھاپے مار کے ان کو گرفتار کر دیا۔ اور اس وقت جو ایک رف پوری آزاد کشمیر میں، ظفر آباد کے اندر بڑی سطح پہ گرفتاریاں ہوئی، پورے آزاد کشمیر میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دھرنا ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ تو اس لیے میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ ظلم کی کالی سیاہ رات انشاءاللہ ختم ہوگی تو ہم گھروں کو جائیں گے، ختم ہوگی تو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر یہ ظلم کی کالی سیاہ رات ہم ختم نہ کر سکے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں، کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے بیرونی دنیا کے اندر، جب وہ کوئی ہمارے حق میں پوسٹیں اپلوڈ کرتے ہیں یا ہماری یہ ویڈیوز، ہماری یہ دھرنے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارا ایک نوجوان برمنگ سے جس کا تعلق ہے عامر حزیم، اس کو جو ہے انٹرپول کے ذریعے پتہ نہیں وہاں اٹھا لیا گیا۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر کشمیری قوم کے ساتھ اس وقت جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ، حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا، بھارت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ، بھارت کی جو وزیر، اس کی منسٹری، وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ کی طرف سے، منسٹری آف فارن افیئرس، اس کی طرف سے کل یا پرسوں ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ پہلی بات ہے
शर्म आनी चाहिए उन अफसरान को जिन्होंने यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा किया, यहाँ पे ऐसा जबर किया, दहशतगर्दी की कि आज हमारा दुश्मन, हमारा असली दुश्मन भारत वहां पे खड़ा होके वो मीडिया पे जो है वो बातें कर रहा है। मैं जो उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई कि जी हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ स्टैंड करते हैं, हम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म बर्बरियत और उसकी मजम्मत करते हैं, और हम तैयार खड़े कि वहां के शहरियों को इमदाद दी जाए, वहां पे खुराक नहीं है, इस तरह की बातें की। पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हम फिर भी बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हैं। हम अपने जिस्मों पे और दिलों पे जख्म खा के अपने अनगिनत शोधा की खबरें सुन के अपने ऊपर होने वाले जबर के बावजूद फिर भी बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हैं कि भारत को कोई हक हासिल नहीं है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करे। ये मामला हमारा और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, आजाद कश्मीर हुकूमत के साथ है। हमारा, हम किसी को अपने मामलात के अंदर भारत समेत किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो हमारी तहरीक को तार करने के लिए, हमारी तहरीक के को कंधा इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ या जम्मू कश्मीर के शाहियों के खिलाफ कोई बात करे। क्या हमारा ज़रूर है कि हम शहादतों के बावजूद, जुल्म और जबर के बावजूद भारत के इस घिनौने बयान को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इस पंडाल में खड़े होके आप सारों की तारीफ से मुस्तरद करते सारे। मैं इस स्टेट की वजाहत से, मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें पता है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी तरीके से हमारी आवाज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएगा इंशाल्लाह। तो मैं अपने तमाम रियासत भर के ताजर भाइयों से फिर गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि अपने शटरडाउन को, अपने पहिया जान को, ट्रांसपोर्टर भाइयों से, उनसे भी गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि किसी सूरत अपने शटर न खोलिएगा, लॉकडाउन जारी रहेगा। किसी सूरत ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन, ट्रांसपोर्ट गुड्स, उन सारों से मेरी अपील है, गुजारिश है, कोई जबर नहीं है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक अपनी इस लॉकडाउन को जारी और सारी रखिएगा। जो लोग, जो हमारे ताजर भाई कुर्बानी कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा उनको कि यह आपका नुकसान नहीं है, रिज़्क़ का वादा अपने रब के पास है, ये नुकसान नहीं है, तो ये आपकी कुर्बानी है। वो जो लोग बगैर इजाजत के इंतजामिया, अच्छा एक और बात कि कुछ चंद सहूलतकारों ने शहर के अंदर, रावलाकोट शहर के अंदर दुकानें खोली, ये मेरे रब का फैसला है कि उनमें से एक साहब के बारे में बताया गया जिसकी दुकान सुपलाई बाजार के अंदर है, कि उनके कहने पे दुकान खोली और फिर आके उसकी दुकान को कोई लूट के ले गई। का फैसला है। उसे ये सबज बाग दिखाया गया कि सारी दुकानें बंद हैं, तुम दुकान खोलो, तुम्हारी बहुत बड़ी सेल होगी। वो सेल उन्होंने अपने लिए इकट्ठी की और उससे ले गए। ऐसे वाकयात होंगे। तो जो अपने आप को लुटाना चाहता है, जो गद्दारी में अपने आप को शामिल करना चाहता है, वो बेशक दुकानें खोल ले।
जिसके अंदर ईमानी गारत मौजूद होगी, जो अपने शुहदा के लहू को, मुकद्दस लहू को नहीं बोलेगा, वो किसी सूरत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऐलान से पहले लॉकडाउन नहीं खोलेगा, इंशाअल्लाह नहीं। अच्छा, एक खत मुझे दिया गया हमारी किसी, मैं सिर्फ जो हमारी खवातीन मौजूद हैं, एक हमारी कोई बेटी है, उसका तल्लक इस दरेक से है। ये 2-3 दिन कबल मुझे ये खत मिला, मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उन हुक्मरानों को मुतनब्बे करूंगा कि जब हमारी माँ बहन बेटी के ये जज्बे हों, 5000 रुपये नाल लगा मिशा दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मिशा 5000 रुपये नाल 5000 है। यस, साथ ने 5000 रुपए का नोट फंडिंग के तौर पे स्टेपल करके इसके साथ रखा। माशाल्लाह। पहले पैरे के अंदर कुछ वो सोचने के हवाले से तारीफी कलमात कहेंगे, मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसको हज़फ करूंगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपकी बेटी, भेजो नाम जाहिर नहीं किया, अलग दे लिखा, वादिये पर पीछे 84 देखी ना दरेक से ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਲੱਗ ਪਿੱਛਾ क्रॉस लग सीधा करने पे करते हुए कुछ अग्गा ना जाने से बादशाह आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूँ। नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले, जज्बे और फिक्र मुकम्मल उरूज पर है। घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ इंतजामात चल रहे हैं, अगरचे दिक्कत है। मौसम की खराबी की वजह से बहुत से मेहमान बीमार हो चुके हैं। जिन खवातीन के बच्चे जेलों में कैदों बंद हैं और जो लाशें नहीं मिली, वो आज 15 दिनों से सो नहीं सकी, जिसकी वजह से तबीयत नासगार है होगी। उलमाए कराम को बुलाएं और इस्तिखारा करने के बाद आगे कोई पेशरफ्त की जाए और निकलने से पहले खूब गड़गड़ा के दवाओं का तमाम करवाया जाए तमाम धरनों में। अपनी जदोजहद में इस नुक्ता नज़र को भी मद्देनजर रखे कि शेख जैद अस्पताल का नाम शाहजेब शहीद अस्पताल और बाकी तमाम शोधा का नाम के नाम से सड़कें, मदारस, स्कूल, दुकानें और चौक खुले। अल्हम्दुलिल्लाह हम खवातीन ने घरों के अंदर खत्म कुरान का सिलसिला शुरू कर दिया है। 19 जून को उन्होंने ये खत दिया। आज परोस 19 जून चौथा कुरान पाक चौथे दिन खत्म किया गया और फतवात की सुबह तक हमने यही सिलसिला जारी रखना है। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम चंद खवातीन को लेकर एहतिकाफ बैठ जाएंगे जब तक अब आप वापस नहीं आते। अल्लाह करे जल्द मुतालबात पूरे हो जाएं। फतह की नसीम सुबह में जब प्रोग्राम होगा तो किसी एक प्रोग्राम में खवातीन को जरूर शामिल करना। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जब हमारी बच्चियों के ऐसे जज्बात होंगे, ऐसे एहसास होंगे, तो यकीनन हमारे हौसले बुलंद होंगे। बेशक हमें नहीं मालूम वो दरेक से। और इसी तरह ये तो एक बेटी का दर्द हम तक पहुंचा। हम महसूस करते हैं
کہ اس पंडाल के अंदर ناظرین بارش ہی ہونے نہیں ہے. اور ہمارے ہر گھر کے اندر بہت ساری خواتین ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جو شاید کسی دھرنے میں بھی نہیں جا سکتی ناکوں کی وجہ سے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو ہماری خواتین مائیں بہنیں، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ جس درد کے ساتھ ہماری بوڑھی ماں، جس درد کے ساتھ ہماری بہن، جس درد اور کیفیت کے ساتھ ہمارے بزرگ، اور بالخصوص وہ جو کھوتلی زبان بولنے والے معصوم بچے جو الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے، وہ جس درد کے ساتھ، جس کیفیت، جس غم کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے دیر ہو سکتی ہے، ان کی دعائیں کسی صورت رد نہیں ہوں گی، کسی صورت رد. بے شک. تو میں اس لیے آپ ساروں سے اسی طرح یہ بات کہ ایک ہمارے بہت ایکٹیوسٹ صحافی اویس جو ہماری تحریک کے اندر بڑا کلیدی رول تھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی خبر اب تک پورے کشمیر کے اندر یہ پکڑ دکڑ گرفتاریاں تشدد یہ کیا جا رہا ہے. تو میں جو آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ ایک اور بات اپنی خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے، اس دھرنے کے حوالے سے میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا ان سے، ان کے ذریعے تمام ماؤں بہنوں سے کہ دھرنے میں آئیں، ایک وقت مقرر روزانہ کی بنیاد پہ آئیں. آپ کا آنا ضروری ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ 6 بجے کے بعد 6 بجے تک آپ دھرنے میں موجود رہیں، لیکن 6 بجے تمام خواتین ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، اپیل ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ بعض خواتین محلے سے، گاؤں سے پیدل چل کے دور علاقے سے یہاں پہ تشریف لاتی ہیں مشقت کر کے. تو بہتر یہی ہے کہ گزارش آپ سے کہ 6 بجے تک آپ یہاں پہ موجود رہیں. 6 بجے تک آپ 6 بجے یہاں سے آپ واپس چلی جایا کریں. آپ کی مہربانی ہوگی، نماز شو. یہ میری آپ سے دردمندانہ اپیل، اور آپ کے ذریعے تمام خواتین سے بھی اور بچوں کو بھی، تمام پنڈال سے میری گزارش ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہم یہاں سے اس کا اقرار نہیں کر سکتے. تو بچے بھی جو اثر کے بعد ابھی بیٹھے پلیز، کہ بچے بھی وہ بھی 6 بجے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی اپنے گھروں تک پہنچا دیا جائے. آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بزرگ یہاں پہ موجود رہیں گے. تو میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا سارے احباب سے کہ کچھ سے حکمت عملی کے طور پہ ہمیں جو یہ سبق ملا یہ جہاں پہ بیٹھنے کا، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ کس طرح آپ کی آواز کہاں پہ گونجی. اگر ہم اس وقت 3 دن قبل آگے بڑھ جاتے تو شاید آپ کی آواز بہت تک نہ پہنچتی. تو اس لیے تھوڑا نمازوں کا اہتمام کریں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ روزانہ، اور اس دھرنے کی اس کو قائم و دائم رکھیں. جو اس کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو کچھ ہمارے سیکورٹی اہلکار جو ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. کوئی کسی اس میں آتا ہے، کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی طرح کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ اس شخص کو، اس اہلکار کو گرفتار کر کے کور کمیٹی کے جو جس ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے اس کے کور کمیٹی کے ممبر کے پاس لائیں. اپنے طور پر کوئی کارروائی نہ کریں. جو آپ کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، لیکن انتظامی طور پر آپ کہیں پہ بھی اپنے طور پہ کوئی کارروائی نہ کریں. متعلقہ جو ہے جو ممبران ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے. دوسری کہ ہم انشاءاللہ اس دھرنے کو، تمام دھرنوں کو جاری و ساری رکھیں گے. مذاکراتی عمل سے
क्योंकि जो हमें अफर्ज की गई अभी तक कोई पेशरफ्त तो जो है सामने नहीं आई। तो जो ही कोई पेशरफ्त सामने आती है उसका नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, जो भी होता है वो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन आप सारों से मेरी जो गुजारिश है कि खुसूसी तौर पर खुसूसी तौर पे घरों के अंदर, इस पंडाल के अंदर, मसाजिद के अंदर, मदारस के अंदर दवाओं का खुसूसी एहतमाम करें, दवाओं का खुसूसी एहतमाम करें और आप अपने अल्लाह पे तवक्कल करें। इंशाअल्लाह देर होगी, अंधेर नहीं होगी, और एक वक्त आएगा हम सारे लोग एक नई सुबह के साथ इस जुल्म की काली स्याह रात को खत्म करके इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे, यहाँ से पीछे आएंगे। सारे अहबाब बैठ जाएं, चूँकि आज 10 मुहर्रम भी है, और मैं बानी तहरीक जनाब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शोदाए करबला और बिलखसूस हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे इस तहरीक के रीढ़ की हड्डी का मुकाम रखने वाले शाजिब हबीब और दीगर अवामी शोदा तहरीक के लिए जो है वो उनकी दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं करें। मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह अखलास पढ़कर आप जो है वो शोधा की दराजात की बुलंदी के लिए दुआओं, और सारे लोग बैठ जाएं प्लीज़, दुआ में सारे लोग शिरकत करें प्लीज़। आमीन। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، جو پاک کلام پڑھا ہے اس میں غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، اس کلام پاک کے صدقے نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، یقیناً اس محکمے کے اندر بہت سارے تیرے ولی بھی موجود ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس جدوجہد کو کامیاب فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں شہدائے کربلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں شہدائے کربلا والی جرت و بہادری عطا فرما۔ آمین۔ شہدائے کربلا والی استقامت عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں حقیقی معنوں میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، جن ہمارے بھائیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ان کے درجات کو بلند فرما۔ آمین۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی زخمی ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ارحم الراحمین، ہمیں شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مخلوق کی بھلائی کے لیے یہ جو سارے لوگ اپنے گھروں سے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ اگلوں کے اندر کوئی کھوٹ ہے، میل ہے، حسد ہے، اسے دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مخلوق کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ بھی اس پنڈال کو سجانے کے لیے یہاں پہ مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں، جو مائیں بہنیں گھروں کے اندر کھانے پکا کے مہمان نوازی کر رہے ہیں، جو احباب ہمارے پورے کشمیر سے اس دھرنوں کی ان کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کے کھانوں کے لیے، ان کی ادویات کے لیے مشکلات کے باوجود بندوبست کر رہے ہیں، ان سب کو اجر عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے مقامی احباب جو قربانی کر رہے ہیں، جو قربانی کر چکے ہیں، ان سب کے اس عمل کو قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہماری مدد و نصرت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین
हमारे बुनियादी हुकूक के लिए जो जदोजहद है, इससे हमें इस्तकामत अता फरमा। आमीन हमारे इस्तकामत अता फरमा। आमीन। या अरहम अर्राहिमीन, जो हमारा हुक्मरान तबका है उन्हें खुदा अता फरमा। जो अफसरान जिन जालिमों ने हमारे ऊपर दहशतगर्दी की, जुल्म किया, या अरहम अर्राहिमीन, अगर इनके नसीब में हदायत है तो इनको हदायत, आमीन। अगर इनके नसीब में हदायत नहीं है तो इनको निस्तो नाबूद फरमाए, इन्हें हलाक फरमाए। या अरहम अर्राहिमीन, हमारे जो हुक्मरानों ने APC में बैठ के इस बात की, या अरहम अर्राहिमीन, ये तस्दीक दी और इस बात की इजाज़त दी कि हमारी इस अवाम को इसके ऊपर गोलियां बरसाई जाएं, अगर इनके नसीब में हदायत है तो इनको हदायत दे दे। आमीन हम सबको भी हदायत दे दे। आमीन। या अल्लाह, इन हुक्मरानों के नसीब में अगर हदायत नहीं है तो इनको हलाक फरमा, इनकी नस्लों को तबाह फरमा। या अरहम अर्राहिमीन, इनको पूरी दुनिया के लिए इबरत बना। या अरहम अर्राहिमीन, इनको रहती दुनिया के लिए इबरत बना। इनकी नस्लों को तबाह फरमा, इनकी नस्लों को तबाह फरमा, इनको तबाह बर्बाद फरमा। या अरहम अर्राहिमीन, जो लोग बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है, रियासत के अंदर मौजूद हैं, इस अपनी अवाम का दुख दर्द महसूस करके जो अपनी जान माल वक्त की कुर्बानी कर रहे हैं, जो दुआओं की सूरत में कुर्बानी कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अमाल कर रहे हैं, उन सबको कबूल मंजूर फरमा। या अरहम अर्राहिमीन, हमें सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ पुरअमन जदोजहद को जारी रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अरहम अर्राहिमीन, हमें पुरअमन जदोजहद के जरिए कामयाबी अता फरमा। या अरहम अर्राहिमीन, हमारे अंदर जो गलती कोताही है उसे माफ फरमा, हमें दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमा, हमें दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमा और फैसलों पे इस्तकामत अता फरमा दे। या अरहम अर्राहिमीन, जो 70 सालों बाद ये जो कौम जुड़ी है, इसके अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक अता फरमा, मज़ीद इत्तेहाद और इत्तफाक अता फरमा। या अरहम अर्राहिमीन, जो लोग घरों से निकल के इन पंडालों की ज़िनत बने, धरनों की ज़िनत बने, जो लोग हमारे भाई जेलों के अंदर जुल्मत शदत बर्दाश्त कर रहे हैं, या अरहम अर्राहिमीन, उनके घरों की, उनकी फैमिलियों की हिफाजत फरमा, उनके मालों की हिफाजत फरमा। जो लोग इस धरनों में हमारे मीरपुर डिवीजन से, पूंछ डिवीजन से यहाँ पे धरनों के अंदर आए, उनके घरों की हिफाजत फरमा, उनकी फैमिलीज की हिफाजत फरमा दे, अपनी कुदरत से हिफाजत फरमा दे। या अरहम अर्राहिमीन, हमें कामयाबी अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा, जुर्रत व बहादुरी अता फरमा, हमें सही मानों में हुसैनियत का दिखला, हमें यजीदियत के खिलाफ डट जाने की तौफीक अता फरमा। या अरहम अर्राहिमीन, हमें कामयाबी अता फरमा। या अरहम अर्राहिमीन, शुहदाए करबला के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बि इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। माशाअल्लाह।